آقا کے مکتوب کا جواب بھیج چکا ہوں. کوئی فائدہ ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں جو کچھ تھا وہ سب کہہ ڈالا. اگر آپ واقعی پشیمان محسوس کر رہے ہیں تو اسے اللہ کی طرف سے عنایت سمجھیں، کیونکہ یہ پشیمانی مدد کی صورت ہے. بہت سے رومی حضرات اس بارے میں یہی فرماتے ہیں. آقا آپ کی اس غلطی سے جتنے بھی ناخوش ہوں، لیکن وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں آپ کی کوئی بری نیت نہیں تھی. انشاءاللہ عبداللہ، انشاءاللہ. آؤ. شہزادے، پائے تک سے آغاؤں کے نائب جعفر آغا آئے ہیں. اس کا یہاں آنا کیوں ہوا؟ آقا نے بھیجا ہے اسے. دیار اجم کے سفر کے متعلق آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے حضور قبول کر لیں تو وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دے گا. بھیج دو. خوش آمدید. عافیت سے ہوگے تم انشاءاللہ. آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں آقا. آپ سے ملنا، آپ کے حضور پیش ہونا مجھ عاجز کے لیے نہایت خوشی کا باعث ہے. اس کے علاوہ مجھے آپ نے سلطنت کا نائب ہونے کے لائق سمجھا، اس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے تمہیں اس کا احساس ہوگا انشاءاللہ. تمہیں تخت امانت میں سونپ رہا ہوں. آپ کی اس نوازش کے لائق خود کو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کروں گا آقا. یقین کیجئے آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. شہزادے محترم، آپ جانتے ہیں آقا رستم پاشا کے مشوروں اور عجم کے شہزادے القاس مرزا پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد کر رہے ہیں. اس بار وہ فتح یاب ہو کر لوٹیں گے، انہیں اس پر یقین کامل ہے. لیکن کیا تم بھی یہی خیال نہیں رکھتے؟ بالکل، میری بھی تمنا ہے کہ آقا ایک بار اور فتح حاصل کریں، لیکن یہ اتنا ممکن نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ القاس مرزا کو دیار عجم میں جتنا طاقتور سمجھا جاتا رہا وہ اتنا طاقتور نہیں. تمہیں اگر کچھ معلوم ہے تو بتاؤ. انہوں نے بتایا کہ ترکمان سپاہ ان کے ساتھ شامل ہے، لیکن اس سے پہلے جب ان کے برادر سے ان کی جنگ ہوئی تو ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. القاس مرزا آقا کے حکم کے مطابق حرکت کر رہا ہے. اصل مسئلہ بھی یہی ہے، جو اپنے برادر سے اور اپنے خاندان سے بغاوت کر سکتا ہے اس پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا معلوم وہ ہمیں بیچ راستے میں ہی نہ چھوڑ دے. تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ بتاؤ. آقا سے آپ بات کیجئے، اسی میں سب کا فائدہ ہے شہزادے. آپ اس سفر سے انہیں روک دیں، کیونکہ آپ بھی اس سفر کے مخالف ہیں، میں جانتا ہوں. آقا نے یہی مناسب سمجھا ہوگا جعفر. کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے فیصلے پر بحث کرے. شہزادے، اگر کچھ اور نہیں کہنا تو تم جا سکتے ہو. آنے والے دنوں کے بہت سے معاملات پوشیدہ ہیں. انشاءاللہ آقا کے ہمراہ کیا جانے والا یہ سفر خیریت کا وسیلہ ہوگا، خاص طور پر آپ جیسے عظیم شہزادے کے لیے. عبداللہ، اس آدمی کا سائے کی طرح تعاقب کرو گے تم. کوئی سازش کر رہا ہے، یہ آشکار ہے. اس کا مقصد کیا ہے، کون لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، معلوم کرو. آپ کا جو حکم شہزادے. مہرماں، شہزادی، پھر سے تم بہت افسردہ ہو. رستم کی وجہ سے جانتی ہوں. علیحدگی کا فیصلہ واپس لینے کی تم کوشش نہیں کرو گی؟ میرے لیے جو سب سے مناسب تھا میں نے وہی فیصلہ کیا. اپنے لیے یا پھر اپنی والدہ حورم کے لیے؟ ہم شہزادیاں چاہے کچھ بھی کر لیں، اپنی مرضی اور آزادی کی مختار نہیں بن سکتی. اپنے جذبات سے زیادہ دماغ سے کام لینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. محبت جیسا طاقتور جذبہ ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. اگر روکنے کی کوشش کرو گی تو دل پارا پارا ہو جائے گا اور ذہن بھی. آپ کس بات کی منتظر ہیں شہزادی؟ فاطمہ سلطان کا وہ راز آپ کب تک افشا کریں گی؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے گل بہار. فاطمہ سلطان کو ذرا سا لطف لینے دو، ان کے عشق کو جنون بننے دو. اس کے بعد
ان کے عشق کے راز کو سب کے سامنے افشا کر دوں گی. کیسی ہے یہ علت حکیم صاحب؟ راتوں کو نیند نہیں آتی مجھے تکلیف سے. بعض اوقات ذہنی پریشانیوں کے سبب ایسے دنبل ظاہر ہونے لگتے ہیں آقا، اور جب ذہنی سکون میسر آتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اگر یہ ختم نہ ہوئے تو کہیں یہ برس کے دنبل تو نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے. آقا قطن کچھ کہنے کے لیے ذرا اور انتظار کرنا ہوگا. تم جا سکتے ہو. عفیفہ خاتون. حکم کیجیے آقا. انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤں گا. انشاءاللہ. دن رات آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، لیکن کم از کم حورم سلطان کو تو بتانے کی اجازت دیجیے. ان کی دست شفا سے شاید آرام مل جائے آپ کو. کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا. میں یہاں رہائش پذیر ہوں گی جان فدا. ایک دن آئے گا جب میں کبھی واپس نہ جانے کے لیے اس محل میں آؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر کچھ برا نہ ہوا، کیونکہ یہ معاملہ ایک نازک سی ڈوری سے بندھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اگر کسی نے سن لیا تو منیسا بھی ہم پر تنگ نہ ہو جائے کہیں. وہ مسئلہ ختم ہو گیا جان فدا. شہزادے نے اپنی غلطی کی تلافی کر دی ہے. تخت نشین ہونا کتنا دشوار ہے وہ اب سمجھ گئے ہیں. انشاءاللہ خاتون. تم فوراً سامان رکھواؤ. حورم سلطان کو انتظار کروانا مناسب نہیں. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ سلیم کا استقبال کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا. آپ کے محل میں ضیافت پر جو کچھ ہوا میں اسے بول نہیں سکا. بعد میں اسی نے ہم سب کی شکایت کی. وہ دن ماضی کا حصہ بن گیا ہے. سلیم تمہارا برادر ہے، اس کے احترام میں کمی نہ لانا، ورنہ والدہ کو دکھ ہوگا. تم نے اسی وجہ سے ارادہ تبدیل کر دیا علیحدہ ہونے کا؟ والدہ کو رنج نہ پہنچے اس لیے؟ ارادہ نہیں بدلا، وقت آنے پر الگ ہو جاؤں گی. تم نے خطا کر دی محرمہ. رستم سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. جیسے ہی موقع ملے تمہیں ایسا کرنا چاہیے. تم سے اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ کبھی وفا نہیں کرے گا. ادب، شہزادے سلیم تشریف لا رہے ہیں. محرمہ، جہانگیر میرا استقبال کرنے نہیں آیا، اس لیے اس کی خیریت پوچھنے آ گیا. تم دیکھ سکتے ہو میں ٹھیک ہوں سلیم. خوش آمدید. تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہے جہانگیر. میری آمد پر خوشی نہیں ہوئی کیا؟ ہاں تمہیں تو مصطفیٰ برادر کا انتظار ہوگا. آقا کے دل میں بھی تم نہیں برادر مصطفیٰ ہی تھے. لیکن تم اتنے خوش قسمت شہزادے ہو کے حق نہ رکھنے کے باوجود تمہیں سب کچھ مل رہا ہے. پہلے تمہیں ریاست سروحان ملی اور اب نائب بننا. خود پر قابو رکھو. ایسی باتوں کا نہ تو یہ وقت ہے اور نہ جگہ. میں حق نہیں رکھتا، لیکن چھپ کر نکاح کر کے آقا کے خلاف سازشیں کرنے والا شہزادہ حق رکھتا ہے. یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ کیا تم بہت معصوم ہو سلیم؟ منیسا میں تم نے جو کچھ بھی کیا ہم سب جانتے ہیں. جہانگیر، نائب بن جانے سے حقیقت نہیں بدل سکتی. آج تمہیں امانت میں جو تخت سونپا گیا ہے کل وہ اصل حقدار کے پاس ہوگا، اور وہ کبھی بھی تم نہیں ہو سکتے. شاید ایسا ہی ہو یا شاید بالکل نہیں.
मेरे लिए कम से कम एक उम्मीद तो है, तुम्हारे लिए नहीं। मैं बहुत से सफर तय करता रहूंगा, बहुत सी फतूहात हासिल करूंगा, लेकिन तुम यहीं रहोगे, इसी महल की दीवारों के दरमियान वालिदा के घुटने से लगकर बैठे रहोगे। ये कहना क्या जरूरी था? वो कितना हसास है तुम्हें नहीं मालूम? बहुत बड़ा हो गया है, अल्लाह इसे सेहत दे। एक बहादुर शहजादा बनेगा मेरा पिसरजादा। तुम कैसी हो? आपसे मिलने के बाद बिल्कुल ठीक हूँ मलिका। मनीषा में सूरत हाल कैसी है? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ ठीक है मलिका, बिल्कुल जैसा आप चाहती थी। शहजादा सलीम अपने किए हुए वादे पर कायम है ना अब तक? आप फिक्र ना करें मलिका, शहजादे ने महीनों से एक घूंट भी नोश नहीं फरमाई है। नूरबानो, एक दो बार नोश की थी मलिका, लेकिन अंधेरे में। वैसे मेरी बात हो चुकी है, आका जब तक यहाँ मौजूद है वो कतई नहीं पिएंगे। आला, मेरी भी यही ख्वाहिश है नूरबानो। यही चाहती हूँ कि सिर्फ आका के सामने एहतियात कर ले, काफी होगा। मैं आपसे निहायत शर्मसार हूं आका। अपनी खता का एहसास है, खता पर मजीद खता की मैंने। मुझ पर आपने जो एतमाद किया, ठेस पहुंचाई। मेरा ज़मीर भी मुझे बहुत मलामत कर रहा है। सफर पर रवानगी के वक्त आपके हुजूर आकर आपके कदमों पर सर रखकर आपसे माफी मांगना चाहता हूं। यही आरज़ू है मेरी। आओ। मेरे आका, शहजादे जहांगीर मोहतरम तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका। खैर तो है जहांगीर, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपके हमरा मैं भी सफर में शामिल होना चाहता हूं आका। आओ बैठो यहां। अचानक सफर के हवाले से तुम्हें क्यों ख्याल आ गया? अरसा दराज से इस महल से बाहर मैंने एक कदम भी नहीं निकाला आका। महल की बुलंद बाला दीवारों में कैद होकर रह गया हूं। बरादरान को सफर पर रियासतों में जाते वक्त सिर्फ उन्हें रुखसत करने के लिए रह गया हूं मैं, या इस्तकबाल के लिए। जो कुछ हुआ है वो बताओ। तुम्हें किसी बात से सदमा पहुंचा है शायद? मैं जब एक तिफिल था सोचता था बड़ा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, अपने बिरादरान जैसा बनूंगा ये सोचता था, लेकिन ऐसा ना हो सका। उम्र गुजरने के साथ मेरी कमर पर यह बोझ बढ़ता चला गया। बाज़ औक़ात ये बोझ उठाना इतना मुश्किल होता है, खास तौर पर महल में होते हुए। आका, मैं जानता हूं मैं कभी भी अपने बिरादरान जैसा नहीं बन सकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार उनकी तरह महसूस कर सकूं, एक शहजादी की तरह।
तुम एक शहजादे हो, यूं भी। आज तक तुम सफर में शामिल नहीं हुए तो इसका सबब पहले तुम्हारी उम्र और बाद में तुम्हारी सेहत है। मेरी उम्र मुनासिब हो चुकी है। रही सेहत की बात तो सबसे काबिल हकीम भी शामिल होंगे सफर में। अगर कोई भी मसला हुआ तो फौरन हल कर लेंगे। जहांगीर हम तैयार अजम जा रहे हैं। काफी तवील सफर होगा। वहां की सरजमीन, वहां का मौसम तुम जानते हो, बहुत ही सख्त है। लेकिन तुमने जो कुछ कहा इस पर गौर करूंगा। अम्मी पापा आए हैं। गुलबहार, हुमा शाह को उसके कमरे में ले जाओ। आमद से पहले खबर देने का कहा था मैंने। अपनी दुख्तर से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ एक मुआहदा किया था मैंने। अगर अमल दरामद नहीं करना चाहते तो बताओ, उसी लिहाज से कदम उठाऊंगी मैं। मेहरमा, चंद महीनों में सफर पर चला जाऊंगा। एक लंबे अरसे के लिए आप मुझे नहीं देख पाएंगी। मेरी वापसी के बाद क्या होगा आप बखूबी वाकिफ हैं इससे। मुझसे अलहदा हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा मेहरमा? कुछ सोचा है इस बारे में? रुस्तम, मैं बताता हूं। मैं वजीर आजम के तौर पर जिंदगी जारी रखूंगा, मगर आप तनहा रह जाएंगी। लेकिन उसूलों के मुताबिक जल्द अज जल्द आपकी दूसरी शादी करा दी जाएगी, आपकी मर्जी के खिलाफ किसी पाशा या सूबेदार के साथ। गलत फहमी है। वालिदा ने मुझसे एक वादा किया है, इस बार मैं जिसे भी चाहूंगी, जिसके भी आरजू करूंगी, उसी से शादी होगी मेरी। ऐसा अगर हो भी गया, लेकिन आपके होने वाले शौहर को मेरे हुक्म का पाबंद होना पड़ेगा। दूर कहीं किसी इलाके में तन्हा और खामोश जिंदगी गुजारना कबूल करेंगी? वो शायद तुम्हारा हुक्म मानने का है ना, लेकिन तुमसे छीनी जाने वाली चीज बहुत खास है, तुम्हारी पसंद की खातून। आपको कैसे समझाऊं मैं नहीं जानता। इंसान को सबसे बड़ा सदमा अपने निहायत करीबी लोगों से, अपने चाहने वालों से पहुंचता है, ये लिखा है आपने। और ऐसा ही है मुस्तफा ब्रदर। शर्मिंदगी की वजह से लिखते वक्त मेरे हाथ साथ नहीं दे रहे, लेकिन रूबरू मिलने के बाद हर बात की वजाहत कर दूंगा। फिलहाल आप ये जान लें कि मैंने कतन आपसे खतारी नहीं की, ये काफी होगा। तुम्हारी पुश्त पर खंजर खोपा है और अब कैसी डिटाई से मकतूब लिखकर भेज दिया है। गद्दारी नहीं की ये कह रहा है। रूबरू आके बताएगा कि असल मामला क्या है। अल्लाह जाने अब कैसी दरोगोई करेगा। लेकिन फिर भी कम से कम उनकी बात सुननी चाहिए मलिका, शायद कोई वजाहत हो। गद्दारी की कोई वजाहत नहीं होती। अगर कोई सामने से दोस्त बनकर पुश्त मुड़ते ही दुश्मन बन जाए तो वो उसकी सजा भी भुगतेगा। हम भी उसके हूर जहां के साथ खुफिया ताल्लुक को अफशा कर देंगे। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कतईन ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। क्यों तुम अब तक उसकी हिमायत कर रहे हो? हूर जहां की वजह से क्या? असल मामला मेरे वकार का है वालिदा। आखिर ऐसी बात आप सोच भी कैसे सकती हैं? मेहरुनिसा, क्या तुम भी ऐसा सोच रही हो? शहजादे मुस्तफा कैसे जमीन के मालिक हैं ये बात हर एक अच्छी तरह जानता है, लेकिन अफसोस है कि लोग इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें भी चुप नहीं रहना चाहिए फिर। और अब तो ये बात हर कोई जानता है कि तुम शहजादे के निकाह में हो। और याद रखना, शादी के वक्त तुमने मुझसे एक वादा किया था। जिस ताकत की तुमने बात की थी उसे किस वक्त इस्तेमाल करोगी तुम? आओ। शहजादे,
कितने दिनों से हमारी कोई बात नहीं हो सकी। बात करना तो दरकिनार, मुझे देखना भी गवारा नहीं तुम्हें। मैं हूं नहीं हूं, जमीन पर हो आसमान पर हो, मुझे नहीं मालूम। अपने कमरे में जाओ हूर जहां। मैं खुद को अब तक माफ नहीं कर पाई तो तुमसे भी माफी की तलबगार नहीं। लेकिन मैं पशेमान नहीं बेअसर। मैं इस पर मजबूर थी बहुत। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। या तो मैं खुद को मार देती या फिर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी बेअसर। तुम्हारी खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर ऐसा किया था। तुम्हारी नजर में इसकी कीमत नहीं कोई। मैं कई रोज से खुद से जंग लड़ रहा हूं हूर जहां। एक तरफ सब कुछ भुलाकर तुम्हें गले से लगाना चाहता हूं, दूसरी तरफ कोई चीज रोक देती है। मुझे तुम्हारी गद्दारी याद आ जाती है हूर जहां। अगर तुम मुझे नहीं चाहते प्यासा, मुझसे मोहब्बत नहीं करते, और अगर चाहत नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी। जो सजा दोगे मैं इस पे राजी हूं, चाहे इसी वक्त मेरी जान ले लो या फिर हुक्म दो मैं चली जाऊंगी। दोनों सूरतों में जिंदा नहीं रहूंगी। मसीह से तुम खैर की खबर लाए होगे इंशाल्लाह। शहजादे मुस्तफा सफर के तरफदार नहीं है, लेकिन उसके मुखालिफ भी नहीं होंगे, ये आश्कार है। सफर होगा, वापसी नहीं होगी। सुल्तान सुलेमान अपनी कयामत की तरफ कदम बढ़ाएगा। एलखास मिर्जा किस हाल में है? क्या होगा, आग से खिल रहा गद्दार। सुल्तान सुलेमान की हमशीरा फातिमा सुल्तान से मुलाकातें कर रहा छुपकर। बस इसी चीज की कमी थी। चलो तुम ज्यादा देर ना करो, अब मिर्जा के पास वापस जाओ, उसे शक ना हो जाए। ठीक है। सूबेदार को मकतूबात भेज दो अब्बास। अजम का शाह बनने के बाद मुझे फराहम की गई अपनी इमदाद के एवज दुगनी कीमत मिलेगी उन्हें, ये जान लें। मैं फौरन भेज दूंगा शहजादे, कोताही ना करना। तुम कहाँ थे? काफी देर से नजर नहीं आए। बाजार गया था, फातिमा सुल्तान के लिए जो हार बनवाया था वो लेने गया था।
इस महल में मेरा दम घुट रहा है नूर बानो। मुझसे नफरत कर रहा है हर कोई, जबकि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। खुद को महफूज और खुश महसूस करना चाहिए था मुझे, लेकिन इसके बरक्स है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई मेरी खता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा ही है तो आप क्यों उन्हें मौका फराहम कर रहे हैं? आप आका की वली अहद की तरह हैं, सल्तनत के नायब हैं। कोशिश करें कि आका के एतमाद को ठेस ना पहुंचने पाए। वालिदा। जहांगीर, बैठे रहो। मेरे बहादुर पिसर, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। वालिदा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हकीमों से बातचीत कर चुका हूँ। सफर पर जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। तुम क्यों इतना इसरार कर रहे हो जहांगीर? मैं तुम्हें अपनी नजरों से हरगिज दूर करना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी सूरत हाल हसास है। कुथाया जाने के बाद भी तुम वहां नहीं ठहरे, फौरन वापस आ गए। जब तुम वहां गए थे मैं तब भी बहुत परेशान थी कि तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। अब दोबारा मुझे इस आजमाइश में मत डालो। आप सिर्फ अपना ही सोच रही हैं वालिदा। मेहरमा और मैं भी आपकी पसंद की हुई, आपकी मुंतखब की हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी चाहे जो ख्वाहिश हो, हमें जिस चीज से खुशी होती हो, उसकी आपको बिल्कुल परवाह नहीं। जहांगीर, मेहरमा का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस सूरत हाल में खामोश नहीं रह सकता। अब मुझे इजाजत दीजिए, हम्माम जाना है मुझे। ये अरबी नस्ल का घोड़ा है आका। साइज के कहने के मुताबिक हमारे पास जितने भी घोड़े हैं सब एक तरफ, और ये एक तरफ। निहायत बरक रफ्तार है। आप जैसे अजीम बादशाह के काबिल तो नहीं है, लेकिन अगर आप कबूल फरमाएंगे तो सलीम गुलाम को बहुत खुशी नसीब होगी। क्या अहम खुसूसियात हैं इस घोड़े की? सबसे पहले ताकतवर है, बाहिम्मत है, लेकिन सब चीजों से ज्यादा अहम बात, अपने मालिक का वफादार और इताअत गुजार है। ताकतवर, बाहिम्मत और इताअत वाला, हाँ। अगर आपको पसंद नहीं आया तो? नहीं, बल्कि बहुत पसंद आया है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसी खुसूसियात का हामिल शहजादा मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये तोहफा मैंने कबूल कर लिया। अल्लाह इससे भी ज्यादा अच्छा तुम्हें नसीब करे, मेरी दुआ है। आमीन। मेरे सफर पर होने के दौरान मुहतात रहना, क्योंकि गद्दार हर वक्त साजिशें करते रहते हैं। अगर तुम्हारी मामूली सी कमजोरी उन्हें मिली तो वो फौरन तुम्हारी इसी मामूली कमजोरी पर हमला करेंगे। मुझे सबक मिल चुका है आका। आपसे और रब से वादा किया है, अपनी कमजोरियों को खुद पर गालिब नहीं आने दूंगा। और जब आप जैसे अजीम बादशाह ने मुझे अपना तख्त अमानत में सौंपा है तो हरगिज नहीं। मेरा घोड़ा तैयार करो। जितनी तारीफ की गई इतना अच्छा है कि नहीं देखता हूं। शहजादी खुशामदीद। शहजादे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके आने की खबर करता हूं। नीचे जाकर आगाओं से कहो कि वो चले जाएं, मेरी वापसी के वक्त आ जाएं। शहजादी, मगर आप जो कहा है वो करो मलिक। इस तरह किसी को भी शक हो सकता है। आओ। शहजादी, फातिमा सुल्तान महल से शहजादे के पास जा चुकी हैं। सब कुछ तैयार है ना? गवाहों का इंतजाम कर लिया? आप फिक्र न करें शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक हर चीज तैयार है। अगर कोई मसला खड़ा हुआ या कामयाब ना हो सके तो हर किसी का सर कलम करवा दूंगी, बता दो सबको। परिंदा अब कफस में है और कफस को जलाने का वक्त है। शहजादी, काश कि मुमकिन होता तो अपने लिए मुख्तस करता महल में आपका इस्तकबाल करता। यहाँ ज्यादा मुनासिब है। मैं जैसे ही महल में कदम रखती हर किसी को मालूम हो जाता। कितने दिनों से इस लम्हे का इंतजार था और आप आज मेरे सामने हैं।
गरजे, आपकी खूबसूरती के सामने इन पत्थरों की कोई वक़्त नहीं। इजाजत दीजिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? शहजादे मुस्तफा मोहतरम के हुक्म से तुम्हारी जान लेने आया हूँ, लेकिन पहले जो कुछ तुम्हें मालूम है वो सब बताओगे। कौन हो तुम और किसकी खिदमत कर रहे हो? कौन किसकी जान लेता है, मैं इसी वक्त गर्दन काट दूंगा तुम्हारी। शहजादे मुस्तफा के पास तुम्हें किसने भेजा था? मकसद क्या है, फौरन बताओ। बाजार में जिस आदमी के साथ तुम्हें देखा था वो शहजादे अलकास के आदमियों में से एक है। तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या काम था, बताओ। रुको रुको, बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त आदम? तुम तो मर रहे हो। मेरा बेटा ऊपर सो रहा है, उसे यहाँ से लेकर चले जाओगे तुम। मुझे इस हाल में वो ना देखे। मेरा एक दोस्त है अली आफंदी, बाजार में दुकानदार है, कालीन का काम करता है, उसके पास भेज देना। तुम पहले सब कुछ बताओ, फिर पहले वादा करो तुम उसे यहाँ नहीं छोड़ोगे, लेकर जाओगे। वादा वादा करो। वादा किया। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे, बताओ किसके हवाले करोगे तुम? बाजार में अली आफंदी के कालीन वाला। कालीन वाला? आगे बताओ।
استنبول میں یہ آخری دن ہے. اگر ممکن ہو تو ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہوں گا. میری بھی یہی خواہش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اطراف ایک آگ بھڑک رہی ہے جو ہمیں جھلسا سکتی ہے. نہ تو میں آپ کے پاس رہ سکتی ہوں اور نہ ہی آپ میرے پاس. جہانگیر سفر پر جانے کے لیے بہت ضد کر رہا ہے. اسے یہ سب کون سکھا رہا ہے معلوم نہیں. آج کل وہ بھی تم سب کی طرح مجھ سے خفا ہے بہت. تمہیں جو کہنا ہے کہو. اتنے اصرار سے تم نے مجھے مدعو کیا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی. وہ مکتوب والا مسئلہ والدہ، فاطمہ سلطان کی جانب سے بھیجے جانے والے اس جعلی مکتوب کی بات کر رہی ہوں. انہیں سنگین مذاق کی سزا ضرور ملے گی، یہ کہا تھا آپ نے. عجلت سے کام نہ لو. وقت آنے پر فاطمہ سلطان کو اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی. ضرورت نہیں، میں نے حل ڈھونڈ لیا ہے. ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں آپ لوگ، دکھائی نہیں دیتا. اپنی وضاحت قاضی صاحب کو دیجیے گا خاتون. ہم یہاں بے سبب نہیں آئے، شکایت ہوئی ہے. لے جاؤ انہیں اور زندان میں ڈال دو. حسین نہیں، تمہارا سر قلم کروا دوں گی. کیسی جرت ہے یہ؟ تمہارے سامنے ایک شہزادی کھڑی، فاطمہ سلطان ہوں میں. تم کسے دھوکہ دے رہی ہو خاتون؟ کیا مذاق کر رہی ہو ہمارے ساتھ؟ ایسی عظیم شہزادی کا ایسی جگہ کیا کام، اور وہ بھی ایک نامحرم کے ساتھ؟ ملک خاتون کہاں ہے؟ گھر میں موجود دوسری خاتون کا پوچھ رہی ہو تو اسے بھی تمہارے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا. اب چلو آگے بڑھو. ارے اے غافل، اگر میری بات سچ ہوئی اور اگر میں واقعی شہزادی ہوئی تو اپنا حشر سوچا ہے اس کے بعد؟ اچھا تو تم کون ہو؟ اعظم کے شاہ تہماسب کا برادر ہوں. میرا نام القاس مرزا ہے. شہزادے کے استقبال کے لیے جو رسم ہوئی تھی وہاں ان کا نام ضرور سنا ہوگا تم نے. مجھے کیا معلوم کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے کیا آپ کے پاس؟ مجھے میرے محل خبر بھیجنے کی اجازت دو. حقیقت اسی وقت سامنے آ جائے گی اور تمہارا سر قلم ہو جائے گا. اچھی طرح سوچو. تم نے کیا کر دیا یہ مہرما؟ میں ان سے اپنا انتقام کب لوں گی؟ آپ نے ہی پوچھا تھا مجھ سے. انہیں سزا مل چکی ہے. تم جن کی بات کر رہی ہو وہ شہزادی ہے، آقا کی ہمشیرہ ہے. ایسا گھٹیا الزام ان پر کیسے عائد کر سکتی ہو تم؟ چلو ان کا تمہیں خیال نہیں، لیکن کیا آقا بھی تمہارے ذہن میں نہیں آئے؟ یہ مسئلہ اس خاندان کی عزت و وقار کا ہے. تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ خاندان کے وقار کو خطرے میں ڈالنے والی میں نہیں، فاطمہ سلطان ہے. ہر کوئی ان کا اصلی چہرہ دیکھنے یہی چاہتی ہوں اور وہ اسی کے مستحق ہیں. فارحہ، حکم کیجیے ملکہ. فوراً میری بکی تیار کرواؤ. تم یہ سب کرو کہ یقین نہیں آ رہا. کب سے کرنے لگی تم ایسے کام؟ سب سمجھیں گے اس کے پیچھے میں ہوں. یہ کھناونی سازش میں نے کی ہے، یہ کہا جائے گا. اطمینان رکھیے، اس کی ذمہ داری میں قبول کروں گی اور آقا سے بھی بات کروں گی. اپنی زبان سے تم ایک لفظ تک نہیں نکالو گی. کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا یہ تم نے کیا ہے. سمجھ گئی والدہ؟ سمجھ گئی میری بات؟ محل سے تم قدم باہر نہیں نکالو گی، کم از کم جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہو جاتا تب تک. تمہیں آخری بار نصیحت کر رہی ہوں، آئندہ کبھی اپنی قامت سے بڑا کام کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گی کہ کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا. مہرما، ظاہر ہے کہ تعاقب کیا گیا ہے، سازش کی گئی ہے. میں کیسے اتنی لاپرواہی کر سکتی ہوں؟ کیسے مجھ سے یہ غفلت ہو گئی آخر؟ خود کو قصوروار نہ سمجھیں. جو کچھ بھی ہوا اس کا سبب میں ہوں. آگ میں جان بوجھ کر کودنے والا میں ہوں. خدا غارت کرے، کیسی پریشانی آن پڑی ہے. یہ پریشانی اتنی بڑی بھی نہیں. آپ کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور میرا سر قلم کر دیا جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ محبت کرنے کی سزا ملی ہے. ہرگز نہیں. ملک کو عفیفہ خاتون کے پاس بھیجا ہے.
हमें यहाँ से किसी को खबर हुए बगैर निकाल लेंगी। ये मामला छुप जाएगा, आका को भी मालूम नहीं होगा। लेकिन मुखबरी करने वालों को किस तरह खामोश करेंगे आप? पहले यहाँ से निकल जाए, बाद में इनकार कर देंगे। हम दोनों ही इनकार करेंगे। शहजादी, रुस्तम, आगाओं में से किसी ने यनीचरों को यहाँ देखकर महल में मुझे खबर भिजवा दी। शुक्र अदा कीजिए कि सिर्फ मुझे ही खबर हुई है। अफीफा खातून, सब खैरियत तो है खातून? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो रहा है? आपको बताने के लिए कहाँ मसला है? लुकमान आगा, हमें तन्हा छोड़ दो, कुछ बात करनी है। अफीफा खातून, मत पूछिए, अजीब मुसीबत आई है। सूरत हाल बहुत संगीन है, कयामत आ गई है। हुआ क्या है आखिर, मुझे ये बताओ। मलिक खातून, फातिमा सुल्तान तुमसे मिलना चाहती हैं। फातिमा सुल्तान अब तक महल नहीं पहुंची हैं। किसी को भी इस बात की खबर नहीं। आला, फौरन रुस्तम पाशा को खबर दो। किसी को भी मालूम होने से पहले फौरन खत्म कर दिए मसला। फातिमा सुल्तान का क्या होगा फिर? क्या बचाएंगी आप उनको? वो खौफ से खामोश रहेगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि फातिमा सुल्तान आका को जरूर इसका हिसाब देगी, और सिर्फ ये बात हमें ही मालूम होगी। चलो फारिहा, देर ना करो, फौरन जाकर रुस्तम पाशा को खबर दो। तुमने से कोई जाए लुकमान आका के पास, मुझे आका से मिलना है, उन्हें खबर कर दे। आपका जो हुक्म मलिका। तैयार हो जाओ, हमें चलना होगा। आप कौन हैं? तुम जब सो रहे थे मैं तब आया था। मेरा नाम तुरगुल है। तुम्हारे बाबा का दोस्त हूं। बाबा कहाँ हैं? वो कहाँ गए? बाबा, तुम्हारे बाबा काम की वजह से मिस्र गए हैं। कुछ अरसा वहीं रहेंगे, कब वापस आएंगे ये मालूम नहीं। कोई आदमी है बाजार में, कालीनों का ताजिर अली आफंदी। क्या तुम जानते हो उसे? ठीक है, बाबा की वापसी तक तुम वहीं रहोगे। चलो अब तैयार हो जाओ। चलो आओ मेरे साथ। मेरी मर्जी भी शामिल नहीं है, लेकिन जहांगीर हक पर है। वो जवान हो गया है। मेरे हमरा सफर में शामिल होना दूसरे शहजादगान की तरह उसका भी हक है। अभी खासा वक्त है, मैं उससे बात करके कायल कर लूंगी। इरादा बदल देगा अपना, क्योंकि उसकी सेहत हर चीज से अहम है। हाँ, ऐसा ही है। तो मेरे पास किस लिए आई थी हुरम? लुकमान ने बताया कि तुम्हें कुछ बात करनी है। मैं वो आपको कैसे बताऊं मुझे नहीं मालूम सुलेमान, मगर आपको बताना जरूरी है। फातिमा सुल्तान, आओ। मेरे आका, कल मैं सफर पर रवाना हो रहा हूं। ये सफर एक नई फतह पर मुश्तमिल होगा, इसमें कोई शक नहीं। इंशाअल्लाह। मेरी गैर मौजूदगी में सलीम पर नजर रखना। सलीम पर एतमाद नहीं है क्या आपको? मनीषा में उसकी जो हालत देखी थी वो नजरों से नहीं जाती। वो तो ठीक है कि उसने तौबा कर ली कि वो वैसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एहतियात की जरूरत है। सूरत हाल हसास है। माज़अल्लाह जरा से हवा चली और बारिश हुई तो पांव फिसल जाएगा।
आप यहाँ की फिक्र ना कीजिए, मैं हूँ उसके पास। इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद माफी का हकदार होगा मेरा पिसर। इंशाल्लाह। यह हिजर कयामत खेस होगा। अभी से ही मुझे हसरत होने लगी है। कैसे बर्दाश्त करूंगी मुझे नहीं मालूम। दूसरी तरफ जहांगीर की सूरत हाल ने अफसरदा कर रखा है। कोई मसला हुआ है क्या? आओ। मुझे याद फरमाया आपने शहजादी। तुम्हारा शुक्रिया महमूद। मैं जो बात कहूंगी वो रुस्तम या किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए। तुम पर मैं एतमाद कर सकती हूँ ना? इस पर शक न रखिए आप शहजादी। करीब आओ। हमतन गोश रहो और मेरी बात सुनो। तुम बखूबी जानते हो शहजादे अलकास मिर्जा के साथ फातिमा सुल्तान की मंगनी हो जाएगी। उसके बाद वो सफर पर जाएंगे। अलकास मिर्जा उस सफर से वापस नहीं आएगा। शहजादी, मैंने कहा वो नहीं आएगा। आपका जो हुक्म शहजादी। बाबा, सफर पर जाने की ख्वाहिश करने वाला शहजादा क्या खुद को ऐसी तारीकी में रखता है? मैंने अपना फैसला तब्दील कर लिया है आका। मैं सफर पर नहीं जाना चाहता। अगर चला भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा, ये आश्कार है। हर शख्स कोई जख्म रखता है। किसी का जख्म उसके वजूद पर होता है और किसी का उसकी रूह पर। हर कोई अपना जख्म छुपाना चाहता है बिसर। कोई भी दूसरों के सामने खुद को कमजोर जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन वो जख्म हमेशा हरा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इंसान हर्फ वाव की शक्ल में वजूद में आया है। बाज औकात अपने आप को हर्फ अलिफ की तरह समझता है, लेकिन इंसान अपनी तमाम जिंदगी 2 लम्हों पर गुजार देता है। सबसे दुरुस्त चीज जिस दिन सोचता है वही दिन उसकी मौत का होता है। जहांगीर, मेरे बहादुर पिसर, मेरे हमरा चल रहे हो तुम। तुम्हारे पास जो इल्म और इरफान है वो किसी के पास नहीं है। सफर में तुम्हारे मशवरों की बहुत जरूरत पेश आएगी। अभी तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। क्या मुझे किसी किस्म की उम्मीद बांधनी चाहिए? ये तो सफर से वापसी के बाद ही बता सकता हूँ मुरजा। आका से इस सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करूंगा। निकाह कर लिया है ये बताऊंगा। उन्हें कायल कर सका, उन्हें राजी करने में कामयाब हो सका तो उस वक्त हम साथ रहना शुरू करेंगे। शहजादे, हमारी रवानगी का वक्त आ पहुंचा है। सिपाह आपकी मुंतजिर है। मेरे वापस आने तक तुम यहीं रहोगी। लाला, मेरी शहजादी, मेरे शहजादे आपकी अमानत में होंगे। रियासत, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
آقا نے گزرگاہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے شہزادے. ہمارے لشکر سواس کے قرب و جوار میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اعلیٰ. انشاءاللہ تیاریاں مکمل ہوں گی. مکمل ہے شہزادے. ہم سب وقت پر روانہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ کوئی بدمزگی نہیں ہوگی. اب اور کیا ہو سکتا ہے نساء؟ مجھے سلطنت کے نائب سے ہٹا کر یہاں پر قید کر دیا ہے. تم پھر بھی تدبیر اختیار کرنا مت چھوڑنا بیٹا. میں جانتی ہوں حقیقت میں یہ نہیں چاہتے ہو تم، اور حق پر بھی ہو، لیکن کڑوا گھونٹ پی لو، برداشت کر جاؤ سب کچھ. آقا کے سامنے یہ زبان پر مت لانا، ان سے گلہ مت کرنا. آپ پریشان نہ ہو والدہ، میں نے بھی یہی سوچا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قدرت آغا، سو کیوں رہے ہو؟ اٹھ جاؤ. سنبل آغا، تم آئے ہو؟ یہ کوئی نیند کا وقت ہے کیا؟ کیا کروں پھر آغا، کاروبار ٹھنڈا پڑا ہے، دکاندار رو رہے ہیں، سفر سے واپسی کا انتظار کر رہے ہیں. سپاہی مال غنیمت لے کر آئیں گے، ڈھیر ساری دولت لائیں گے، انشاءاللہ ہمارے بھی چہرے مسکرائیں گے اللہ کی رضا سے. اوئے ہوئے، اس عمر میں ذرا اپنے خواب تو دیکھو. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اوہو، تم چھوڑو، جانے دو. اب تمہاری عمر نہیں رہی کام کرنے کی. کوئی مشورہ ہے کیا آغا؟ ہاں ہے بالکل. تمہارا اب آرام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، اس لیے یہ دکان میرے ہاتھ بھیج دو. ناممکن. کیسے بھیج دوں آغا؟ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ دکان لے کر کیا کرو گے تم؟ مجھے جو قہوہ دیا تھا نا تم نے، بس اسے ہی پیس کر شربت بناؤں گا میں، اور پھر یہاں بازار میں بیچتا رہوں گا، ادھر ادھر. تم تو انہیں دانے کہہ کر مذاق اڑا رہے تھے آغا. انہیں بیچ کر کیا گزارا ہو جائے گا؟ کر لوں گا گزارا. تمہیں کیا ہے آدم ذات؟ تم بتاؤ کیا قیمت لوگے یہاں کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سفر میں تمہیں دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے بیان نہیں کر سکتا برادر. آقا نے کہا ہے کہ انہیں میرے مشوروں کی ضرورت ہوگی. صرف آقا کو نہیں بلکہ ہم سب کو ضرورت ہوگی، بلکہ سارے جہاں کو. چھوڑو مذاق کرنا. حور جہاں کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. دراصل میں بھی آقا کو اپنی صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جہانگیر. جتنا خاموش رہوں گا ضمیر پر اتنا ہی بوجھ پڑتا جائے گا. بابا سے وہ راز اب میں مزید چھپانا نہیں چاہتا. فیصلہ تمہارا ہے، لیکن برادر مصطفیٰ کے ساتھ جو ہوا یہ بالکل نہیں بھولنا. مجھے بھی دراصل اسی کا رنج ہے. برادر مصطفیٰ سوچ رہے ہیں کہ ان کا راز میں نے افشا کیا. وہ مکتوب تمہارے محل سے بھیجا گیا تھا بے حضرت. شہزادگان، شہزادے محترم، آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے بعض خصوصی مسائل ہیں. ٹھیک ہے جہانگیر، تم خیمے میں جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں برادر. شہزادے، لہ کی شہزادی اینا گئی لوناکا نے خبر بھیجی ہے. مناسب وقت پر استنبول تشریف لانا چاہتی ہیں. لہ کی شہزادی ہیں وہ؟ لہ کے بادشاہ زگمنس کی دختر ہیں. وہ خاص طور پر حرم سلطان سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں. کیوں ملاقات کرنا چاہتی ہیں والدہ سے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکہ ان کی سرزمین پر پیدا ہوئی ہیں. میرے خیال میں اس صورتحال کو وہ سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. سمجھ گیا. ایک شہزادی سے ملاقات کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. مناسب ہے، آ سکتی ہیں. آپ کا جو حکم شہزادے. کیسی عجیب بات ہے نا سوکلو. ہر کوئی مصطفیٰ برادر کا انتظار کر رہا تھا اور سلطنت کے نائب کے طور پر میں تعینات ہو گیا. عجیب بات کیوں ہوگی شہزادے؟ کچھ بھی ہو جائے سروہان ریاست میں آپ موجود ہیں. جب ہر کوئی غلط سوچ رہا ہے تو
तुम क्या हकीकत में ऐसे ही सोच रहे हो या फिर तुम सिर्फ मेरी दिलजोई करने की कोशिश कर रहे हो? मैं आका की जहानत और अक्ल पर हैरान हूं शहजादे। उन्हें आप में ऐसी उम्मीद दिखाई दी जो किसी दूसरे में नहीं, जैसे मुझे दिखाई दे रही है। कल क्या होगा ये पोशीदा है सुकुल्लू, लेकिन बात चीजें ऐसी हैं कि जो कानून की तरफ वाज़े और अटल हैं। मसलन ब्याजत तख्त नशीन होगा तो रुस्तम अपना मनसब जारी रखेगा, मुस्तफा बिरादर तख्त नशीन होंगे तो अपने लोगों में से किसी को बैठाएंगे, और अगर मैं तख्त नशीन होऊंगा तो अपने साथ काबिल एतमाद और तजुर्बेकार शख्स को रखूंगा। लेकिन वो कौन होगा ये मालूम नहीं, जिसे भी आप मुनासिब समझेंगे वही होगा। शायद वो तुम भी हो सकते हो सुकुल्लू। नवाजिश है आपकी शहजादे। आपको इसका एहसास है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हुरम सुल्तान और मेरे दिल में तख्तनशीनी के उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ आप हैं। हमारी मुखलिसाना कोशिशें सिर्फ आपके मुस्तकबिल के लिए हैं। तो फिर आप लोगों की तमाम मेहनत अकारत चली गई रुस्तम पाशा, वरना बाहर सूरत आका सलीम को नहीं मुझे अमानत में सौंप देते अपना तख्त। ये एक बहुत तवील और कठिन रास्ता है शहजादे। आप इस आर्जी फतह को ना देखिए। हमारी मदद से एक दिन तख्तनशीन आप ही होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना हर कदम एहतियात से उठाना होगा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? खुलकर बात करें। हूर जहां सुल्तान से शादी के मुताल्लिक आका को आगाह करना चाहते हैं आप। ऐसा मत करें, इस तरह आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। आप कैसे जानते हैं मैं आका से ये बात करूंगा? कहीं आप हमारी बातें सुन तो नहीं रहे थे? ये राज मेरे दिल में ही रहने दें और मेरी बात को समझिए। आप अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए। हम आपके मुस्तकबिल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी इस मेहनत को जाया ना कीजिए। कतअन नहीं, हूर जहां के मुतालिक आप कोई बात नहीं करेंगे। अगर ये बात सामने आ गई तो शहजादे सलीम को मौका मिल जाएगा। फिर आप कभी भी नहीं रोक सकेंगे उनको, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या आप इस पर राजी होंगे? अपने हाथ इस तरह बांधोगे कि सीधा हाथ ऊपर रहेगा। शाबाश। शहजादे के आते ही तुम उन्हें झुककर सलाम करोगे। हाँ, ऐसे इजाजत के बगैर बात नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी मर्जी से बात करना मना है। समझ गए? शाबाश। शहजादी। खुशामदीद अब्दुल्ला। कौन है ये नौउम्र लड़का? इसकी कहानी तवील है। शहजादे से मुलाकात कर लूं फिर तफसील से बताऊंगा। शहजादे यहाँ मौजूद नहीं है, वो सिवास रियासत आका से मुलाकात के लिए गए हैं। आपको इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। हसीन भी हो तुम नाम की तरह। तुम्हारा बेटा है क्या? शहजादी मोहतरम, आका आपका इंतजार कर रहे हैं। आका। बताओ मुस्तफा, क्यों मेरे फैसले को नजरअंदाज किया गया
और मेरी आंखों में धूल झोंक कर दरोग गोई की गई। मैं इसका सबब जानना चाहता हूं। आका, मरहूम अमीर बहर पाशा की दुख्तर महर निसा खातून के लिए मैं कितने गहरे जज्बात रखता हूं, उसके बगैर खुद को अधूरा समझता हूं। अगर ये कहूं तो आपके लिए शायद इसके कोई मायने नहीं होंगे, लेकिन हकीकत यही है। एक शहजादे की हैसियत से कवायद और ज़वाबित का एहतराम करने की जरूरत थी, लेकिन मैं नहीं कर सका, इसके खिलाफ चला गया। इस वजह से मुझे माफ कर दें, मैं आपकी पनाह चाहता हूं। तुम इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, तुम्हें उसे तरजीह देने का हक नहीं था। अगर इसके खिलाफ हुए तो इस सल्तनत के हकदार नहीं बन सकते तुम। तुम्हारा दिल नोचने के लिए गद्दार, गाफिल, भूखे गिद्ध तुम पर हमला करेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे, तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। कैसी संगीन खता है। हर मर्तबा तुम मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांगते हो। तुम्हारा मकसद क्या है? मेरे सब्र के पैमाने को आजमाना चाहते हो क्या? आका, इस निकाह के बाइस तुमने आलल ऐलान मेरे फैसले को नजरअंदाज किया। इसकी सजा क्या है तुम जानते ही हो। अगर हर बार तुम्हें माफ कर दिया गया है तो इसका सबब यह नहीं कि तुम मेरे पिसर हो। तुम्हारे लिए मेरी गहरी मोहब्बत है, बिल्कुल दूसरी औलादों की तरह। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरी औलाद मेरी मोहब्बत को कमजोरी समझकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यह आखिरी बार है मुस्तफा। इसके बाद अगर जरा सी भी गफलत बरती तो उसकी तलाफी बिल्कुल नहीं हो सकेगी मुस्तफा, और बिल्कुल सोचे बगैर हुक्म सादर कर दूंगा। अब फौरन अपनी रियासत वापस जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तुम जा सकते हो। लेह की शहजादी आपसे शर्फ मुलाकात और महल में मेहमान बनना चाहती हैं मौला। लेह की शहजादी? शहजादी ऐना यागई लोना का। मैं जिस सरजमीन पर पैदा हुई वहां के मालिक मेरी कदम बोसी के लिए खुद तशरीफ ला रहे हैं। हमारा इनकार करना मुनासिब नहीं। आने दो उन्हें। रुस्तम की गैर मौजूदगी में तुम्हारी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया। जानते ही हो, मेरे दुश्मनों को आका के सफर पर जाते ही उनका पहला काम मुझ पर हमला करना ही तो होता है। आप इत्मीनान रखिए मलिका, मैंने हर तरह की तदाबीर कर ली। आला, जरा सलीम पर भी नजर रखो तो। अगर वो कोई गलती करने की कोशिश करे तो फौरन खबरदार करना। आपका जो हुक्म मलिका। लेकिन शहजादे सरोहान से काफी तजर्बा हासिल कर चुके हैं मेरे ख्याल में। संगीन खता करेंगे इसका एहतमाल नहीं। क्या तुम ऐसा समझते हो? मैं इन्हें ऐसा ही समझता हूं मलिका। इस महल से सरोहान जाने वाले शहजादे में और इस वक्त तख्त पर बैठे हुए शहजादे में पहाड़ जितना फर्क है। आका ने आपसे जो कुछ कहा उस बारे में ज्यादा मत सोचिए ब्रादर। आपसे मोहब्बत है, आप पर एतमाद करते हैं, इसलिए ऐसा कहा है। उन्हें भी समझें, उन्हें भी रंज पहुंचा है। उनके मुझसे कहे हुए अल्फाज का मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे बिरादर जहांगीर। खुशामदीद शहजादे। कैसे हो तुम अब्दुल्ला? ये तिफल कौन है? एक दोस्त की अमानत है। इसके बाबा ने मुझे अमानत सौंपी है। अगर इजाजत हो तो ये यहीं रहेगा, आगाओं की मदद करेगा। नाम क्या है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ है शहजादे, ऐसे कहो। यूसुफ है शहजादे। अगर ऐसे है तो रहने दो। अगर तुम्हारी अमानत में है तो इसकी हिफाजत करो अब्दुल्ला। इसे वालिद की शफकत दो।
हर औलाद को वालिद की जरूरत होती है, क्योंकि वालिद और बेटे के दरमियान अगर एक बार मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो कभी भी नहीं मरती है, वो मौत तक जिंदा रहती है। औलाद वालिद को हमेशा याद रखती है और उसकी मौत के बाद भी उसे फरामोश नहीं करती। ये याद रखो। अपनी औलाद को तुम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यूसुफ को उसकी जगह अपना सकते हो तुम। जाफर नाम के आदमी के मुतालिक तहकीकात कर ली क्या तुमने अब्दुल्ला? कर ली है शहजादे, लेकिन कुछ बरामद ना हो सका। मालूमात के मुताबिक महल के आगाओं में से एक है, सदर दरबान आगा का नायब था वो, और बहुत पहले ही से बरतरफ कर दिया गया था। मेरे साथ आओ। आपके लिए खुसूसी तौर पर वेनेडिक से मंगवाया वालिदा, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत नफीस है। ये आपकी जुल्फ जितनी कीमत भी नहीं रखता। मेरे लिए बेशकीमत आप हैं। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही हो मेरे पिसर। ऐसा ही है, लेकिन अगर खुलकर बात करें हम तो आप मुझे जितनी चाहे वक़्त दीजिए, मगर आपके दिल के तख्त पर बेआज़त के सिवा और कोई नहीं बैठता। आपके लिए ज्यादा कीमती वो है। सलीम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी नजर में तुम दोनों ही बराबर हो। आप गलत ना समझे वालिदा, आपकी तरजीह पर कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से सोचिए। बेआज़त को मुझ पर तरजीह देकर क्या आप ठीक कर रही हैं? अगर बेआज़त तख्त नशीन हो गया तो आप समझ रही हैं कि आपका हुक्म मानेगा वो? मुमकिन नहीं। इन बातों की जरूरत क्या है आखिर? आप अच्छी तरह सोचिए वालिदा, मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। मुझ समेत सबकी किस्मत का फैसला आपकी जुम्बिश लब का मोहताज है। सोचिए जरा। तुम मेरे हमरा रहना। हर औलाद को वालिद की जरूरत होती है, क्योंकि वालिद और बेटे के दरमियान अगर एक बार मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो कभी भी नहीं मरती है, वो मौत तक जिंदा रहती है। मेरे आका, अलकास मिर्जा तुर्कमान वालों से राब्ते में है। वहां के करीब लश्करगाह में आपके हुजूर पेश होने का मुंतजर है। हाला खैरियत की खबरें लेकर आएगा इंशाल्लाह। दूसरी सूरत में सब कुछ हासिल करने का मौका हमेशा के लिए खो देगा। आका, सबसे मुनासिब तो बेशक आप ही जानते हैं, लेकिन अलकास मिर्जा अपने अहद पर कायम भी रहा तो जंग के दौरान क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? अगर उसने अहद शिकनी से काम लिया तो हमें एहतियात मलूज़ खातिर रखने की जरूरत होगी। तुम्हारी क्या राय है? अलकास मिर्जा और उसकी हामी कुव्वतों को मैं संभाल लेता हूं। मेरे हमरा लश्कर भी होगा। इस तरह हम उन पर हाकिम रहेंगे मेरे आका। शहजादे बरहक हैं आका। जो अपने अवाम के साथ बगावत कर सकता है वो हमसे क्यों बगावत नहीं कर सकता? मैंने उससे तख्त अजम का वादा किया है जहांगीर, और वो दामाद भी बनेगा। गद्दारी करने का कोई सबब नहीं है। फर्ज करो कि वो करता है, फिर क्या होगा? अपने बिरादर के साथ यकजा होकर क्या हम पर हमला करेगा? मेरे आका, ये बहस तमाम हो चुकी बेआज़त। तुम्हें इस सफर में बिल्कुल मनसब दिया जाएगा, लेकिन यहां जो कुछ होगा, जिस वक्त होगा, उसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा।
आओ। शहजादे, क्या हुआ अब्दुल्ला? आपको बताने के लिए एक निहायत अहम मसला है। मैं आपको वो बताने पर मजबूर हूं। हाँ कहो। मेरे साथ जो आपने तिफल देखा था उसका वालिद मेरा दोस्त नहीं था। आपने जिसके ताकुब का हुक्म दिया था उस जाफर आगा का बेटा है वो। उसके वालिद को मारने के बाद उसके तिफल की हिफाजत करने पर मजबूर हो गया। उसे मार दिया मतलब? कुछ देर पहले तुमने कहा था कि तुम्हें जाफर के ऊपर कोई शक नहीं है। मैं वो सबके सामने नहीं बता सकता था। जाफर नामी वो शख्स अजम का जासूस था। मुझे सब कुछ बता दिया उसने। वाहन के अतराफ में शहजादे अलकास के मुहाफिजों में से एक ने आका पर हमला करने का मंसूबा बना रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? उन्होंने बेहतरीन मंसूबा बना रखा है। अगर हमने उन्हें ना रोका तो वो कामयाब हो जाएंगे। अब आपके सामने दो रास्ते हैं शहजादे, एक रोशनी वाला, दूसरा तारीकी वाला। किस पर चलना है इसका फैसला आप। मेरे आका, आप ठीक तो हैं? हकीम को बुलवाऊं क्या? जरूरत नहीं। मेरे आका, अलकास मिर्जा की जानिब से खबर आ चुकी है। कासिद के मुताबिक वान के करीब लश्करगाह में आपके हुजूर शरफ बारियाबी के मुंतजिर हैं। इंशाअल्लाह जैसे कहा था, अजम और तुर्कमान की मदद शामिल हो गई होगी। अलकास मिर्जा मेरा इंतजार कर रहा है। वो कुछ देर में रवाना होने वाला है। तुम मेरे हमरा रहना। बादशाह के खेमे में कैसे दाखिल होंगे हम? दाखिल तो हम हो ही जाएंगे, लेकिन हमले का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। मेरा इशारा पाते ही तुम सान मिर्जा का निशाना लोगे और मैं सुल्तान सुलेमान का। आओ। शहजादे तैयार हैं। चलो। मुस्तफा, वालिदा। मेरे बेटे, अच्छी तरह सोच लिया क्या? तुम जाने पर मजबूर नहीं, और ये बात तुम्हें हरगिज नहीं भूलनी चाहिए कि वहां से यहाँ तुम्हें लाने वाली तुम्हारी किस्मत ही है। वालिदा। मेरे बेटे, छोड़ो बारिश होने दो, हवा चलने दो, सर्दी आने दो। मत भूलो कि सर्दी खत्म होती है तो बाहर आती है, और वो बाहर तुम हो।
शहजादा मुराद कितने खुशकिस्मत साबित हुए। शीर ख्वारगी के अयाम में ही पाए तख्त आ गए। आप जैसी अजीम मलिका की साए शफकत में खुशकिस्मती दायमी हो मेरे पिसरजादे की। आओ। मलिका, लेह की शहजादी ऐना या गईलाना का रवाना हो चुकी हैं। जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। आला, फौरन तैयारियां शुरू करवा दीजिए। शहजादी जब महल में आए तो यहाँ की शान और शौकत उन्हें महसूस होनी चाहिए। बेहतरीन अंदाज से इस्तकबाल किया जाए। आपका जो हुक्म मलिका। शहजादी से आपकी मुलाकात बहुत अहम लगती है मलिका। जाहिर है कि वो मेरी पैदाइश की सरजमीन से आ रही है नूरबानो, और वहां के मुख्तार लोगों में से एक हैं। ना चाहते हुए भी माजी सामने आ जाता है। जहन के गोशे में छुपी हुई यादें मेरे जहन में दर आ जाती हैं। 30 बरस कहना आसान है। कितनी गर्मियां बीत गई, कितनी सर्दियां, कितनी बहारें। हर किसी को नसीब नहीं होता मलिका। आप सिर्फ तुर्कों की ही मलिका नहीं है, बल्कि सारे जहां की मलिका है। जरा और ऊपर, थोड़ा और दाएं तरफ। अरे क्या कर रहे हो? सही तरह से लगाओ ना ये आदम। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बस यही लगा दो इसे। लगा दूं आका? हाँ लगा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंबुल खाना बहुत खूबसूरत लग रहा है आका। कसम से याकूब, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए यहाँ। आपकी मेहरबानी है आका। माशाल्लाह। सुंबुल खाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आका। क्या बेच रहे हो तुम यहाँ? कसम से शरबत बेच रहा हूँ यहाँ। खुशबू नहीं आ रही है क्या? पीनी पीनी सी। ऐसी खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। बिल्कुल नहीं सूंघी होगी, खास तौर पर बना रहा हूँ। मैंने बताया ना इसका नाम कहवा है। आइए जरा सा पीकर देखें। आइए, कसम से अपने लिए तैयार किया था, आपकी किस्मत में था। याकूब, मेरे हाथ का तैयार किया हुआ कहवा आका हजरात को आका। मुबारक हो, ये दुकान नई खोली है लगता है। मैंने बताया ना आपको, बस एक हफ्ता ही हुआ है अभी। कैसा है ये कहवा? पहले कभी ऐसा शरबत नहीं पिया मैंने। मेरी इजाजत है, कसम से। रखो, भरो और भर दो ऊपर तक। लीजिए आका। चलिए पी के बताएं कैसा है। ये कैसा शरबत है? क्या ऐसा शरबत होता है? ये तो जहर है। अरे शरबत कह रहा हूँ तो मतलब कड़वा शरबत है। फौरन इसका घूंट मत लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पीजिए आप। इसके बाद अपने मुंह में मिठाई का एक टुकड़ा रखिएगा आप। शरबत मिठाई, शरबत मिठाई। नहीं पीना हमें। और तुम ये बेचोगे? 2 दिन में बर्बाद हो जाओगे तुम। नहीं अगर मेरा कहवा इतना बुरा भी नहीं। इसे पीने से तबीयत बहाल हो जाती है। पीकर देखें। ओहो, नहीं पीना, मुझे कह तो दिया। नहीं पीऊंगा। आप पीकर देखें। छोड़ो मुझे आदम, मैंने कहा ना मैं नहीं पी रहा। अरे तुम्हें पीना पड़ेगा इसे। तुम लोग बिल्कुल अहमक हो। अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा। चलो उठो यहाँ से और जाओ। और हाँ बताता चलूं, हर प्याली की 1 गचर पे देनी पड़ेगी तुम्हें। और ये मिठाई मेरी तरफ से ले जाओ। हमने तो मिठाई खाई ही नहीं। खाई क्यों नहीं? सामने ही तो रखी है तुम्हारे। अल्लाह तू मुझे सब्र दे। चलो कामिल चलो। हाँ चलो। अरे तो जाओ, यहाँ से जाकर जहन्नुम रसीद हो जाओगे। तुम्हें तो अपनी दुकान में बुलाकर गलती की मैंने। अरे ओ मलून। इन आदमियों पर गुस्सा तो कर रहे हो, लेकिन ये तो कोई भी नहीं पी सकता। याकूब, कसम से सारा गुस्सा तुम पर ही उतार दूंगा मैं। तुम भी उनकी तरह मलून हो। ला हौल वला कुव्वत। मिठाई के साथ तो ये अच्छा लग रहा है। शहजादी ने अपने अवाम की बदहाली के बारे में बताया। तुमने भी पहले कहा था उन लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। उनकी मदद के लिए मैंने वादा किया है।
ऐसा कोई वादा करने से पहले क्या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं थी वालिदा? तुम खिलाफ हो क्या? मसला मेरे खिलाफ होने या ना होने का नहीं है वालिदा, मैं सिर्फ उसूलों की बात कर रहा हूं। आका अगर यहां होते तो आप ऐसा कोई वादा कर सकती थी क्या? नहीं। और अगर नायब मेरे बजाय बियाजत होता तो अब तक कयामत खड़ी हो चुकी होती। शहजादे, फातिमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। उन्हें आने दो। शहजादी। हुरम, सलीम, तुम्हारी वालिदा ने तुमसे पूछे बगैर क्या करने की कोशिश की है? ये कैसी जसारत की है इसने? क्या ये जानते हो तुम? तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा कोई फैसला करना कितना दुरुस्त है ये मुझे नहीं मालूम। यूं लगता है जैसे सल्तनत के नायब तुम नहीं हुरम है। आका के रूबरू इस बात का क्या जवाब दोगे तुम? वालिदा का हुक्म मेरा हुक्म है शहजादी। इनकी सोच साहिब है, इनका फैसला दुरुस्त है। हमने किसी भी पनाह मांगने वाले को कभी मायूस नहीं किया। हाँ, आका के हुजूर अगर किसी भी किस्म का कोई जवाब देना पड़ा तो वो मैं दूंगा। आप इत्मीनान रखें। बिल्कुल। शहजादी को नूरबानो खातून की आमद की खबर दीजिए। वो यहाँ नहीं है। तो फिर क्या वो हमाम पे ही हैं? शहजादे सलीम मोहतरम के पास गई हैं। आपकी ये नेकी कभी फरामोश नहीं करूंगी शहजादे। हुरम सुल्तान और आपकी इस इनायत पर मैं बेहद मसरूर हूँ शहजादे। आपके हालात काफी अरसे से मालूम है, इस पर खामोश रहना मुनासिब नहीं है। अजीब बात है, काफी अरसे से मैं ये भूल ही गई थी कि मैं एक शहजादी हूँ। ये बात आपके महल में आकर याद आई। कितनी शानदार और कितनी सहर अंगेज जगह है ये। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा शहजादी। आओ। शहजादे मोहतरम, नूरबानो खातून तशरीफ लाई हैं। भेज दो उसे। शहजादी। नूरबानो, कोई मसला है क्या? नहीं, आपको देखने आई थी। अगर कोई खुसूसी बात कर रहे हैं तो... नहीं नहीं, तुम्हारी आमद से मुझे खुशी हुई। शहजादी से मुलाकात हुई थी ना? हाँ, कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब इजाजत चाहती हूँ। मैंने यहाँ के हमाम की बहुत तारीफ सुनी है। उसे देखने के लिए बेचैन हो रही हूँ शहजादी। एहतियात कीजिएगा शहजादी। हमाम खूबसूरत तो है लेकिन जमीन फिसलन वाली है। हम नहीं चाहते कि आप फिसल जाएं। कैसे आना हुआ नूरबानो? मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। शहजादी का क्या काम था यहाँ? कैसे कोई लापरवाह हो सकते हैं? कोई नुकसान हो जाता तो? तुम्हारे यूं हर वक्त मेरे अतराफ मौजूद रहते हुए मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है? आपको मुझसे शिकायत है तो मैं चली जाती हूँ। नूरबानो,
बहुत कड़वा है। मिठाई मिठाई। ओहो, इसके साथ मिठाई भी खाओ है आदम। शाबाश। नहीं आगा, तुम अपना फैसला बदल लो, कोई ये घुट भी नहीं पिएगा। बस बस, ज्यादा बकवास ना करो। चलो जाओ जहन्नुम की तरफ, मलूनों का सरदार। सुंबुल आगा, महल से आ रहा हूँ मैं। खुरम सुल्तान ने कहवा लाने का हुक्म दिया है। हाय, मलिका के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान। कसम से सिर्फ मेरी मलिका नहीं समझी है इस कहवे की कीमत। आखिर वो हुरम सुल्तान जो है। तुम जाओ, मैं अपने हाथों से बनाकर लेकर आऊंगा मलिका के लिए कहवा। जाओ। हुरम सुल्तान का कहा है क्या इसने? हाँ, क्या समझा है तुमने? तुम्हें नापसंद आने वाला यह कहवा मलिका शौक से पीती है। महल का शरबत है ये, महल का। असल में कुछ बुरा नहीं है, पीते हुए अच्छा महसूस करता है इंसान। मिठाई पेश करो इसे, खाओ। हाँ, एक और लो। और ला दो याकूब, और ला के दो। जैसा कि आपका अंदाजा था आका, तहमास पसपा होने की तैयारी कर रहा है। इस बार फरार नहीं हो सकेगा रुस्तम। एलकास और तुर्कमान उसका रास्ता रोक देंगे और हम भी दूसरी तरफ से उसका घेरा तंग करेंगे। मेरे आका, शहजादे बेयाजत मोहतरम तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, खैरियत की खबर के साथ आए होगे इंशाल्लाह। कारा अहमद पाशा की सरकर्दगी में हमें वान में फतह हासिल हुई है। वो शहर अब अजीम आका की मलकियत में आ चुका है। ये खबर सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझसे तुम जो कुछ मांगना चाहो मांगो। हर फतह में आपका शरीक कार बनना और तेग बदस रहने के सिवा कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे आका। सारे जहां ने देख लिया कि तुम कितने बहादुर शहजादे हो। अल्लाह तुम्हारे रास्ते तुम्हारे चेहरे की तरह रोशन रखे। मुबारक हो शहजादे, इस फतह के लिए आपने अजीम मेहनत की। रुस्तम पाशा, मेरा फैसला है अनातोलिया के सूबेदार सिकंदर पाशा को वान का सूबेदार मुकर्रर करता हूँ। इसके अलावा कराह अहमद पाशा को हमारी तरफ से मुबारकबाद भेजे, उसे इस फतह का इनाम बहसूरत दिया जाएगा। जो हुक्म बादशाह सलामत का। आका की इस मसलिहत को समझना मुमकिन नहीं है। आमसिया के सूबेदार की हैसियत से इस सफर में आपको लाजमन होना चाहिए। मशरिक की ज़रअत की जिम्मेदारी आप पर है। आखिरी सफर पर जब मैं गया था तब तुम इस दुनिया में भी नहीं आए थे जहांगीर। तुम उदास ना हो, मुझे आदत हो गई है सब की। शहजादे, अब हमें चलना चाहिए। आ रहा हूं। महल में एक तुम ही हो जो मेरे तरफदार हो। जानता हूं ब्रदर, आपने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मैं किसी भी तरह से खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी हुई। पोशाक वाले मसले की बात कर रहे हो क्या? मैंने तो उस हादसे को भुला दिया है, तुम भी ऐसा ही करो। माजी में हम सब ने गलतियां की हैं, मैंने भी। अब हमें सिर्फ मुस्तकबिल का सोचना है। तुम्हारे रास्ते आसान होंगे ब्रदर। आपकी भी ब्रदर। अफीफा खातून, शहजादी ऐना के एजाज में एक शानदार जियाफत के एहतमाम का हुक्म दिया है। कनीजों की निगरानी कीजिए, कोई कोताही सरसत ना हो। मैं किसी किस्म का मसला नहीं चाहती। आपका जो हुक्म मलिका। सुंबुल आगा से कहवा मंगवाने के लिए कहा था, क्या वो ले आए हैं? सुंबुल आगा ने बजाते खुद लाने के लिए कहा था मलिका। कहवे समेत वो खुद आकर पेश होंगे। आला, आप जा सकती हैं। अफीफा खातून, ये मकतूब आपके लिए है, लुकमान आगा ने भेजा है।
عفیفہ خاتون، آقا کی صحت کا ہر طرح خیال رکھنے کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کو تو معلوم ہے آقا بے حد ضدی ہیں۔ ہم نہایت احتیاط کے ساتھ پہاڑی اور میدانی علاقوں سے گزر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آقا کی صحت میں کسی قسم کی بھی بہتری نہیں ہو پا رہی، اور صرف یہی نہیں، آقا کے دونوں پاؤں پر سوجن بڑھتی جا رہی ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیماری سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ آقا کے اس سفر سے صحیح سلامت واپس آنے کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آقا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تبریز کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ہم۔ کہاں ہیں وہ ترکمان صوبیدار القاس مرزا؟ ان سب نے تو آپ کی بیعت کی ہوئی تھی۔ وہ کبھی نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب کہ نہیں آئیں گے؟ تمام صوبیدار اپنا وعدہ فراموش کر چکے ہیں رستم پاشا۔ میرے برادر نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، آپ پر میرا قرض ہے۔ پوشاک والے مسئلے سے میں نے ہی آپ کو بچایا تھا۔ میں اپنا قرض بہت پہلے ہی ادا کر چکا ہوں مرزا۔ اچھا تو پھر کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اگر میں برباد ہوا تو آپ بھی برباد ہوں گے۔ پاشا محترم، آقا ہو، مہرمہ سلطان نے محل سے روانگی سے قبل مجھے بلوایا تھا۔ القاس مرزا کی سفر سے واپسی وہ نہیں چاہتی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہرگز میری ایسی کوئی نیت نہیں پاشا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر وہ ہمارے لیے مصیبت بنا تو ہم اس کا کام تمام بھی کر سکتے ہیں۔ نور بانو، شہزادی یہاں آؤ۔ قریب آؤ۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو جو مجھے سلام تک نہیں کیا تم نے؟ مجھے نظر انداز کر کے تم باتیں کیے جا رہی، یہ کیسی جرت ہے خاتون؟ ہرگز نہیں شہزادی، میری کیا مجال، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا؟ اپنی معمولی سی عقل سے تم کسے دھوکہ دے رہی ہو؟ مت بھولو تمہارے روبرو ایک شہزادی ہے۔ اگر دوبارہ یہ خطا کی تو فنا رسید کر دوں گی تمہیں۔ معذرت شہزادی۔ حرم کے بھروسے کر رہی ہو نا یہ سب، اسی کی وجہ سے اتنی جرت ہے۔ شہزادہ سلیم بھی ایسا ہے، خود کو والدہ کے لیے نہایت بیش قیمت سمجھ رہا ہے، جبکہ حرم کی نظریں شہزادے بیازت پر جمی ہیں۔ اسے بچانے کے لیے شہزادے سلیم کا استعمال کر رہی ہے وہ، اور تم بے خبر ہو۔ نہیں شہزادی، یہ آپ کی سوچ ہے۔ حرم سلطان اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ ایک ہی جھولی میں دو تربوز کبھی نہیں سما سکتے، کیونکہ اگر ان میں سے ایک بھی گر گیا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ شہزادہ سلیم اگر شکست کھا گیا تو تم اور تمہارا بیٹا بھی شکست کھائیں گے، بھولنا مت۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ آ گئے سنبل۔ آقا کی غیر موجودگی سے میں محتاط ہو گئی ہوں، محل سے باہر قدم بھی نہیں رکھتی۔ مرحوم پسر کی برسی تک یہ سلسلہ یوں ہی رہے گا سنبل۔ اے ملکہ، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تمہیں بھی اس دن ضرور آنا ہوگا۔ وقت نزا ہوا تب بھی آؤں گا ملکہ۔
آغا نے بتایا کہ آپ قہوہ منگوا رہی ہیں تو واللہ مجھے ساری دنیا مل گئی. ویسے میں بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ میں کافی دنوں سے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں. خیریت ہوگی انشاءاللہ. آپ کو میں نے گہری تاریکیوں میں دیکھا. سچ کہوں تو آپ کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، اور پھر جب میں آپ کی مدد کے لیے پہنچا تو آپ مجھے کہیں دکھائی نہ دیں. پھر میری آنکھ کھل گئی. مجھے پریشان کرنے آئے ہو کیا؟ آپ کے لیے ان دنوں احتیاط کرنے میں فائدہ ہے. آپ کو اپنے دشمنوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مجھے خوف بہت پہلے تھا سنبل. اپنے کتنے دشمنوں کو میں زیر کر چکی ہوں اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. والدہ سلطان، ابراہیم پاشا، خزینہ سلطان، شاہ سلطان. بتاؤ ذرا کون رہا اب ہے؟ فاطمہ سلطان؟ اسے تو میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی ہوں. واللہ ملکہ، انسان پر سب سے بڑی قیامت اسی وقت آتی ہے جب وہ بلند ترین مقام پر پہنچ کر یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا. اور اب تو میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں ملکہ. تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس مقام تک تنہا پہنچی ہوں اور تنہا رہنا جانتی ہوں میں. ملکہ معذرت، آپ غلط سمجھیں. تم واپس چلے جاؤ تو اچھا ہوگا. لہ کی شہزادی محل میں ہے، مجھے ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے. آپ کو جو حکم ملکہ. خرم سلطان کے فلاحی ادارے میں قرآن خوانی اور کھانا تقسیم ہونے کے بعد ان کے نکلتے نکلتے عصر کا وقت ہو جائے گا. یعنی شام تک رہیں گی؟ نہیں، کچھ دیر وہ قیام فرما کر چلی جائیں گی اور سیدھی محل کے راستے پر جائیں گی. وہاں سے نکلتے وقت وہ ہمیشہ یہی راستہ اختیار کرتی ہیں. اور اگر دوسرے راستے سے چلی گئی؟ ان کے دونوں راستوں کی ہمیں کڑی نگرانی کرنی ہوگی. یہ کام باہر صورت انجام دینا ہوگا داؤد، خاص طور پر سلطان سلیمان کے بچنے کے بعد. ان کی واپسی سے پہلے یہ کام ختم ہو جانا چاہیے. فاطمہ سلطان سے کچھ دیر قبل سامنا ہوا تھا. خرم سلطان کے خلاف باتیں کر رہی تھی وہ. ان کے مطابق ملکہ کے دل کے تخت پر حکمرانی کرنے والا بیازت ہے. یہ راز کی بات نہیں نور بانو. میں اسی وجہ سے والدہ کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے انہیں فرق معلوم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے درمیان آنے کی کوشش کر رہی ہیں. آقا کے بعد اگر والدہ بھی ہماری طرفدار ہو گئی تو میں کتنا طاقتور بن جاؤں گا وہ جانتی ہیں. اچھا، اور دوسرے شہزادہ جہانگیر، مہرمہ سلطان، رستم پاشا، محمد پاشا، یہ لوگ کس کے طرفدار ہیں؟ رستم اور مہرمہ بیازت کے طرفدار ہیں، لیکن والدہ ان کی سوچ کو بدل بھی سکتی ہیں. جہانگیر کا معلوم ہے کھل کر مصطفیٰ برادر کی حمایت کرتا ہے. محمد پاشا کی بات کروں تو وہ بہت محتاط ہے. انشاءاللہ میرا طرفدار ہوگا. انشاءاللہ. آپ تو جانتے ہیں یہ طویل اور خطرناک راستہ ہے. ذرا سی کوتاہی سے آپ سب کھو سکتے ہیں. اگر مجھے میرے لوگ تنگ نہ کرتے تو یقین کرو تخت کی خاطر اور اقتدار کی خاطر میں کبھی کوشش نہ کرتا. لیکن جو کوئی بھی تخت نشین ہوگا وہ دوسروں کے قتل کا فرمان جاری کر دے گا. شاید میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اپنے برادران کے ساتھ میرا اتفاق نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے کیے پر تم پشیمان نہیں ہوگے. بالکل ایسا ہی ہے والدہ. کچھ بھی ہو، میرا جو فرض تھا میں نے وہ کیا. شکر ہے کہ بابا سلامت ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے. خیر کے سوا کیا کہوں، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. کیا مجھے پچھتاوا ہونا چاہیے؟
آپ نے صحیح کیا بالکل. میں چاہ کر بھی خود کو آپ کی جگہ نہیں رکھ سکتی ہوں. اگر کبھی ایسا وقت میرے بابا پر آتا اور اس کا حل صرف میرے پاس ہوتا تو میں کبھی بھی خاموش نہیں رہ پاتی. کوئی فرق نہیں پڑتا ناراضگی اور اختلافات سے. نعمت، میرے طفل، ذرا سوچو نثار. اگر ایسا ہو کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میری موت پر خاموشی اختیار کر لے، صرف اپنا فائدہ سوچے، تو کیا اسے شہزادے سے خیر کی امید ہے؟ انسان ہمیشہ اپنے وقار کے لیے زندگی گزارتا ہے. ہاں ایسے، بالکل ایسے ہی، تیز اور تیز. آج تم نے کیا کام کیا؟ آغاؤں کی مدد کی اور ان کے ساتھ لکڑیاں اٹھوائیں. تمہیں کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ اور مضبوطی سے پکڑو. نہیں، سب نے اچھا سلوک کیا مجھ سے. بہت اچھے. لگتا ہے اسے بھی تم اپنے جیسا جنگجو بنانا چاہتے ہو. میرا جنگجو ہونا کافی ہے، یوسف کی ضرورت نہیں. چلو تم اندر جاؤ. کیا کہتے ہو تم تشجیلی؟ جنگ دروازے تک آ پہنچی یا بس چھڑنے والی ہے؟ تم بتاؤ گی، کیونکہ جنگ میں تاخیر کرنے والے تم ہو. خاموش نہ رہے. شہزادے کو حقیقت سے آگاہ کر دیا. شہزادے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گے. تم اور میں ان کے ساتھ رہیں گے. جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں. جہانگیر، میرے دلیر پسر، تمہاری صحت کیسی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ صحت بہتر ہے والدہ، ٹھیک ہوں. سفر سے جلدی واپس آنے کی وجہ سے ہم سب بے حد فکر مند تھے. ہم سمجھے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے. میرے ساتھ تو نہیں، لیکن وہاں آقا پر بھاری مصیبت آنے والی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ بابا کیسے ہیں؟ القاس مرزا کے آدمیوں میں سے ایک آدمی شاہ طہماسب کا بھیجا ہوا جاسوس تھا. سفر کے دوران اس نے آقا کی جان لینے کی کوشش کی. سلیمان، اطمینان رکھیے والدہ، وہ بالکل ٹھیک ہے. شکر ہے خدا کا. مصطفیٰ برادر سلامت رہیں. صورتحال جان گئے، عین وقت پر پہنچ گئے اور آقا کو بچا لیا. مصطفیٰ؟ اس کا وہاں کیا کام تھا؟ اسے یہ کس طرح معلوم ہوا؟ آقا کی جان بچ گئی، اس پر خوشی کے اظہار کے بجائے مصطفیٰ برادر کا پوچھ رہی ہیں آپ والدہ. مہرما، تم ذرا باہر جاؤ. مطلب کہ مصطفیٰ برادر سورما بن گئے. یعنی چروں نے شہزادے مصطفیٰ کے وہاں سے رخصت ہوتے وقت ان کے حق میں نعرے بلند کیے، اور یہ بھی سنا ہے آقا بھی اس وقت وہاں موجود تھے. مصطفیٰ برادر سورما بن کر بھی سراسر نقصان اٹھا رہے ہیں. سوکلو، آپ سچ کہتے ہیں. اس کے علاوہ شہزادہ مصطفیٰ جتنا عرصہ لشکر گاہ میں رہے، شہزادہ بیازت کے کافی قریب رہے. ہر کوئی یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن صرف والدہ اسے قبول نہ کرنے کی ضد پر اڑی ہوئی ہیں. لیکن ان کی یہ ضد جلد ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میں تم سے طفلانہ رویہ نہیں رکھوں گی جہانگیر. تمہیں بھی اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک ہونا چاہیے. میں چاہتی ہوں مصطفیٰ برادر اگر تخت نشین ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ ہم سب کی جان لے لے گا. ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ وہاں تک جائے گا والدہ، بلکہ سلیم حقیقت کو قبول کر کے تخت سے دستبردار ہو جائے تو کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تخت پر مصطفیٰ برادر کا حق ہے، یہ بات کر رہا ہوں والدہ. بیازت بھی قبول کر چکا ہے، مصطفیٰ برادر کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے. مصطفیٰ برادر کے تخت نشین ہوتے وقت وہ ان سے راضی ہوگا
ब्रादर के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। मुस्तफा ब्रादर भी उसे उसका हक देंगे। ये सल्तनत जज्बात के जोर पर नहीं चलाई जा सकती। मैं यहाँ तुम लोगों के मुस्तकबिल की खातिर अपनी जान दांव पे लगाए बैठी हूँ और तुम लोग वहाँ मेरे और अपने मरने का सामान तैयार कर चुके हो। वालिदा पुरसुकून रहे खुदारा। बेआज़त और मैं भी मुस्तफा ब्रादर का एहतराम करते हैं, उन पर यकीन है हमको, और इसका सिला मौत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी कल ही हजारों का लश्कर लेकर महल के दरवाजे तक पहुंच गया था। खुल्लम खुल्ला सबको जंग की धमकी दे रहा था, कह रहा था कि मैं आप सबकी जान ले सकता हूं। मगर कितने अफसोस की बात है कि तुम लोगों ने फरामोश कर दिया ये। अगर कोई वालिद और पिसर के दरमियान आकर पोशाक में जहर नहीं मिलाता तो वो वाकया कभी भी रूनुमा नहीं होता। मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी है। बयाज़त का भी यही हाल है। हकीकत से मुंह मोड़े बैठे हो तुम दोनों। तुम्हारा वो बहुत प्यारा भाई मुस्तफा तख्तनशी होते ही, पलक झपकते ही खून कर देगा तुम दोनों का। ना चाहते हुए भी वो यही करेगा, क्योंकि उसूल, रिवायात, निजाम यही कहते हैं। उसका साथ देने वाली कुव्वतें कुर्बानी मांगेंगी और वो देगा, वो मजबूर होगा। बस सूरत दीगर ये निजाम कायम नहीं रह सकेगा कभी। अगर आपकी यही सोच है तो बेआज़त के तख्त पर बैठने के बाद क्या होगा वालिदा? या फिर सलीम के? क्या वो निजाम को कायम रखने के लिए यही सब नहीं करेंगे वालिदा? अगर मेरी औलादों में से कोई भी शहजादा तख्तनशी हुआ तो उसके साथ मैं होंगी, जहांगीर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कभी। ये भी तो एक ख्याल है वालिदा। बिल्कुल ब्रादर मुस्तफा के वादों की तरह एक ख्याल। Yeah.